حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شربین لے کر میں محمد حسین ظفر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی لگاتار شور شرابے اور اپوزیشن کے احتجاج کے بیچ ملتوی۔ جموں خطے میں لگاتار بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں سطح آب میں اضافہ۔ کیلا موڑ پر تیز بارش کے باعث مٹی کے تودے گرانے سے شاہراہ 4 گھنٹے تک رہی بند۔ ریاسی ضلع میں لگاتار بارش سے کئی تعمیرات کو نقصان، 2 افراد کی موت۔ وادی میں غیر قانونی اور غیر سائنسی کان کنی سے دریائے جہلم سمیت دیگر ندی نالوں کو ناقابل تلافی نقصان، ذمہ دار کون؟ اور آکاشوانی نے آج منایا اپنا قومی نشریاتی دن۔ اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ 68.8 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، بہار میں انتخابی کمیشن کی ووٹر لسٹ پر خصوصی جامع نظر ثانی یعنی SIR کے خلاف متحد اپوزیشن نے آج مسلسل دوسرے دن راجیہ سبھا میں ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کرنا پڑی۔ مانسون اجلاس کا آج تیسرا دن تھا اور بہار میں ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے راجیہ سبھا میں گزشتہ دنوں سے کوئی قانون سازی کا کام نہیں ہو سکا ہے۔ ادھر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اپنے مطالبات کے حق میں لوک سبھا میں بھی زبردست ہنگامہ آرائی کی، جس وجہ سے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جیسے ہی پریزائڈنگ آفیسر کرشنا پرساد نے دوبارہ کارروائی ملتوی کرنے کے بعد ایوان کی کارروائی شروع کی تو اپوزیشن ارکان نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آئے۔ ہنگامے کے دوران پریزائڈنگ آفیسر نے ممبران کو خاموش رہنے اور پیش ہونے والے بل پر بحث کرنے کی اپیل کی، مگر اپوزیشن نے ایک نہ سنی اور اس وجہ سے کارروائی ملتوی ہوئی۔ دوپہر 12 بجے جب کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے SIR کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کیا اور یوں کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق جموں کشمیر میں رک رک کر بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ سلسلہ اگلے 48 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ جموں کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں اور کچھ مقامات پر سیلابی ریلیں، لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر کھسک آنے کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ محکمے کے ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر میں 23 اور 24 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کے امکان ہے اور جموں صوبے کے پنچ، راجوری، رامبن، ادھمپور، ریاسی اور کٹھوا اضلاع میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے، جبکہ کشمیر میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش متوقع ہے۔ موصوف کا کہنا ہے کہ 25 سے 27 تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم اس دوران کہیں کہیں بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ 28 سے 30 جولائی تک رک رک کر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم اس دوران جموں صوبے کے بعض علاقوں میں صبح کے وقت تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ادھر رامبن اور بانہال کے سیکٹروں میں گزشتہ رات سے مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث کیلا موڑ پر مٹی کے تودے گرانے کے باعث شاہراہ پر ٹریفک کو 4 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ رامبن نے احتیاطی اقدام کے طور پر بعض علاقوں میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ لیا۔ ضلع میں مسلسل بارش کے پیش نظر طالب علموں اور عملے کی سلامتی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، تاہم رامبن اور بٹوت کے زونوں میں اسکول معمول کے مطابق کھلے رہے اور تدریسی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق کشمیر کو ملک کے ساتھ جوڑنے والی شاہراہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر مگرکوٹ کے نزدیک سیلابی ریلیں اور مٹی کے تودے گرانے کے نتیجے میں ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی۔ حکام نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ موسم بہتر ہونے اور شاہراہ صاف ہونے تک اس پر سفر کرنے سے پرہیز کریں۔ اس دوران کشتواڑ سنتھن اننت ناگ روڈ بھی سنتھن نالے میں سیلابی ریلیں آنے کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سڑک صاف ہونے تک اس پر سفر کرنے سے احتیاط کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں 24 جولائی تک بارش کا امکان ہے۔ ادھر قومی شاہراہ پر تیز بارش اور مٹی کے تودے گرانے کے باعث پیدا شدہ حالات کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ شاہراہ کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد تسکین کی یہ رپورٹ۔ ضلع رامبن میں 2 روز سے جاری ابر و آلود موسم آج علل صبح سے تیز بارشوں میں بدل گیا اور تیز بارشوں کے نتیجے میں رامبن کے علاقے میں پسیوں اور ملبے کی زد میں آنے سے جموں سری نگر قومی شاہراہ صبح 10 بجے سے کم از کم 4 گھنٹوں تک ٹریفک کے لیے بند رہنے کے بعد ٹنل اور فیری رامبن کے مقام اوپر پہاڑوں اور نالوں سے گر آیا بحری ملبہ، کیچڑ
और पत्थर टनल के अंदर और सड़क पर जमा हुए और कश्मीर से जम्मू जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर से, जबकि जम्मू से कश्मीर आने वाली लेन को जुज़वी तौर बंद कर गई। हुकाम ने बताया कि शहर के बंद होने से पहले ही जम्मू से पहलगाम और बालतल के रास्ते जा रही शरी अमरनाथ यात्रा ट्रैफिक में शामिल 118 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों ने रामबन के मुतासिर इलाके को पार किया था। ताहम पवित्र गुफा के दर्शन के बाद पहलगाम के रास्ते वापस आने वाली यात्रा की 24 गाड़ियों को हुकाम ने केला मोड़ रामबन के इलाके में महफूज मुकाम पर रोक दिया था, जबकि बालतल के रास्ते वापस आने वाले 3582 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल 102 छोटी बड़ी मुसाफिर गाड़ियों को बानहाल के लांबर ग्राउंड में कायम लंगर साइट पर कुछ वक्त के लिए दरमंदा रहना पड़ा। जम्मू और श्रीनगर से सफर करने वाली मुसाफिर गाड़ियों को भी शहर के बंद होने के पेश नजर दिन के 2 बजे तक उधमपुर और काजीगुंड समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन के अहदेदारों ने आज शाम शहरबीन को बताया कि सेरी और केला मोड़ के मुकाम आज दोपहर बाद शहर को जुज़वी तौर बहाल करने के फौरन बाद बानहाल और केला मोड़ रामबन के पास दरमंदा यात्रा की गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर जम्मू की तरफ जाने की इजाजत दी गई और बाद में 2 बजे बाद से काजीकोट और उधमपुर समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रोके गए मुसाफिर बरदार ट्रैफिक को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने मजीद बताया कि रामबन और बानहाल के सेक्टर में दोपहर बाद से बारिशें थम गई हैं और ट्रैफिक हुक्काम की निगरानी में शहरी और केला मोड़ के मुकाम 4 लेन शहर की मुकम्मल बहाली के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी आज शाम तक काम पर लगी हुई थी। आपने मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान जिला इंतजामिया राजौरी ने खराब मौसम के पेश नजर आज 23 जुलाई को भी जिले में तमाम स्कूल बंद रखे हैं। दरियासना रियासी के माहौर इलाके में दौरान शब भारी बारिशों की वजह से मिट्टी के तूदे की जद में आने से 2 अफराद की मौत हुई है। रियासी में मुसलसल बारिशों के बायस बाज़ इलाकों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि चंद अंदरूनी सड़कें बंद हुई हैं, जिससे लोगों को सख्त परेशानियों का सामना है। मुकम्मल रिपोर्ट रियासी से जाहिद मलिक की ज़बानी। जिला रियासी में भी गुज़श्ता 3 रोज से लगातार मौसलाधार बारिशों की वजह से आवामी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इस शदीद बारिश के नतीजे में न सिर्फ जानी व माली नुकसान हुआ है, बल्कि दर्जनों रिहायशी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला के दूर दराज इलाकों में तुगयानी नालों और पहाड़ी नदियों की बेकाबू रवानी के सबब पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। मोहर से गुलाबगढ़, मोहर से देवल, मोहर से रजौरी और दीगर अंदरूनी सड़कें मसलसल बंद पड़ी है और आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। यहाँ तेज बारिशों के बायस बिजली का निजाम पूरी तरह से दरम बरम हो गया है। कई इलाकों में मुकम्मल तारीखी का आलम है और लोगों के मोबाइल फोनों की बैटरियां भी खत्म हो गई है और आपसी राब्ते भी टूट चुके हैं। हालात की संगीनी के पेश नजर चीफ एजुकेशन ऑफिसर रियासी ने मसलसल दूसरे रोज भी तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने के अहकामात जारी किए ताकि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ गुलाबगढ़ के देवल इलाका में आज बेगम जान नामी खातून को अचानक जजकी की तकलीफ शुरू हुई, मगर देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद ना होने और मसलसल सड़कें बंद होने के बाइस मुकामी लोगों ने खातून को चारपाई पर उठाकर तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इस खातून को मोहर अस्पताल मुंतकिल किया। शदीद बारिश और खतरनाक रास्तों के बावजूद मुकामी अफराद ने अपनी जान खतरे में डालकर ये इंसानी खिदमत अंजाम दी। देवल डोगा के एक शौकत अली नामी नौजवान ने कहा कि अगरचा देवल पीएचसी में कोई डॉक्टर मौजूद होता तो इस खराब मौसम में इस खातून को चारपाई पर उठाकर मोहर ले जाने की जरूरत न पड़ती। यहाँ गुज़श्ता शब दिल दहला देने वाला एक और सानिया पेश आया। शहरबीन को फराम हुई तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शब तकरीबन 2 बजे सब डिवीजन माहौर के बदौरा शिव गुफा के करीब शदीद लैंडस्लाइड के नतीजे में 2 नौजवान जहां बाग हो गए। बताया जाता है कि दोनों नौजवान कौसरनाग यात्रा की तैयारी के सिलसिले में इलाका में मौजूद थे और खीमे में सो रहे थे। पहाड़ से बाहरी मिट्टी और चट्टानों का तोदा अचानक उनके खीमे पर आ गिरा, जिसके नतीजे में दोनों की मौका पर ही मौत हो गई। मरने वाले नौजवानों की शिनाख्त 26 साला रशवाल सिंह वल्दे सोबाराम साकना तूली कालाबंद चसाना और 23 साला रवि कुमार वल्दे परशोत्तम कुमार साकना चिनैनी जिला उधमपुर के तौर हुई। मौजूदा खतरनाक मौसमी हालात के पेश नजर मुकामी इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए आवाम से अपील की है कि वो
बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकले। तुगियानी नालों और बंद सड़कों के बाइस जान व माल का खतरा बढ़ चुका है। आपने जाहिद मलिक की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में आज कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। बोंजवा, सरूड, पाडर और छात्रों के नालों में पानी की सतह में खातिर का इजाफा देखा गया है, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इधर सरूड के कुछ मकामी अफराद ने महकमा तालीम से अपील की है कि उन देहात के तलबा को स्कूल जाने में रियायत दी जाए जहाँ बच्चों को नालों से गुजर कर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी का बहाव तेज है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी इलाके के बंगडारा और मुलिका देहात में गुज़श्ता शब होने वाली शदीद बारिश के बायस मक्की की फसल और सब्जियों की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इस वजह से किसान मायूस हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उन्हें माली नुकसान का सामना है। जिला इंतजामिया से अपील की गई है कि माहिरीन की टीम इलाके में रवाना करके नुकसान का जायजा लिया जाए। इधर ददमरग त्राल में यरकान की बीमारी फूट पड़ी है, जिस वजह से कई अफराद मुतासिर हैं। मकामियों के मुताबिक बीमारी तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोई टीम इलाके के लिए नहीं भेजी गई है, जिस पर आवाम में नाराजगी है। मकामी लोगों ने महकमा सेहत से अपील की है कि फौरी तौर माहिरीन की एक टीम इलाके के लिए रवाना की जाए। इधर राजौरी से हमारी नुमाइंदे आरिफ कुरैशी के मुताबिक जिले के बाडला मंग इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक बच्चा अपने मवेशियों को नदी पार करने ले जा रहा था कि अचानक सैलाब आ गया। बच्चा नदी के बीच में फंस गया, जिससे लोगों में काफी तशवीश पैदा हुआ। इतला मिलते ही जिला इंतजामिया और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और साथ ही फौज की मदद भी ली गई। फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए से बच्चे को वहां से निकाला गया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने हमारी नुमाइंदे से बात करते हुए लोगों से अपील की कि वो खराब मौसम के दौरान नदी नालों से दूर रहें और बच्चों पर कड़ी निगाह रखें। पुलार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगातार ये लोगों को नसीहत दी जा रही है कि किसी भी नदी, नाले, झरने के पास ना जाएं। इसी चीज को लेके कल एक मीटिंग की गई थी सभी अफसरों के साथ, सभी महकमों के साथ, कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी कोई भी नदी नाला है, उसके पास में अपने पशुओं को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए या फिर कोई और पर्पज से नदी नालों के पास ना जाएं। इसके लिए ऑर्डर्स भी बाकायदा किए गए थे। मीडिया के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग, खास तौर से छोटे बच्चे, नदी नालों के आसपास रोम करते हुए, फिर जब अचानक से नदी में फ्लड लाइक सिचुएशन बढ़ गई तो बच्चा वहाँ पे फंस गया। लेकिन उसी टाइम क्योंकि टीम्स अलर्ट पे थी तो टीम्स को मालूम पड़ गया और टीम्स मौके पे पहुँच गई। क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा था, इसलिए हमें हेलीकॉप्टर सर्विस का फ़ायदा लेना पड़ा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा इंडियन आर्मी का कि जिन्होंने टाइमली इसको हेलीकॉप्टर सर्विसेज को यहाँ पे फौरी तौर पे मुहैया करवाया और बच्चे की जान जो है हमने बचा दी है। लेकिन इसके साथ मेरी फिर से मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि बरसात का सीजन है, बारिशें जो है टाइमली कभी रात को बढ़ जाती हैं, उस वजह से अचानक से नदी का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पे किसी भी नदी नाले के पास में ना जाएं। खास तौर से छोटे बच्चे अपने घर वालों को बताए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि उसकी जानकारी फिर पेरेंट्स को भी नहीं होती और वो एक बहुत खराब सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है। ये थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा। शर्बीन, आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के निफाज के लिए एक जामे जायजा मीटिंग की सदारत की ताकि शहरियों के लिए जरूरी खिदमात की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने शहरियों पर मरकूज हुक्मरानी के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। ये जानकारी वज़ीर आला के दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी गई है। साबिक वजीर सईद अब्दुल रशीद ने ब्रंग कोकरनाग इलाके में बिजली सप्लाई की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया से गैर जरूरी बिजली कटौती पर नजरसानी करने और सप्लाई में माकूलियत लाने की अपील की है। यूनुस परी ने बड़गाम से खबर दी है कि जिले के आरत इलाके में गुज़श्ता शाम एक नौजवान पर तेज धार हथियार से हमला किया गया, जिसके नतीजे में शदीद तौर जख्मी हुआ। मजरूब नौजवान की शिनाख्त समीर अहमद साकिन आरत के तौर हुई है और उसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। बारामुल्ला से मिली इत्तलात के मुताबिक अजर पहलीपुरा इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में आर्मी गुडविल स्कूल के कम अज कम 10 तालिब इल्म जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब स्कूल की किराए पर ली गई गाड़ी किसी वजह से बेकाबू होकर सड़क के किनारे से जा टकराई। वाकई की खबर मिलते ही इमदादी टीमों ने जख्मी तालिब इल्मों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला मुंतकिल कराया, जहां सभी बच्चों की हालत। चुन अफसर के दफ्तर को छेत्रागाम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ आज जिले के मुख्तलिफ सियासी
जमातों के नुमाइंदों और ताजर तंजीमों ने एहतजाज किया। एहतजाज की क़यादत MLA शोपियान एडवोकेट शबीर अहमद कली ने की, जिसमें PDP, BJP, अपनी पार्टी और ताजर अंजुमनों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मकामी MLA के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। शेरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, आज हम कौमी नशरियाती दिन यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मना रहे हैं। ये दिन मुल्क में हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में नशरियात के आगाज और इसके तरक्याती सफर को खराज तहसीन पेश करना है। मुल्क में रेडियो की नशरियात की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बम्बई स्टेशन से हुई। ये वो दिन था जब पहली बार वतन अजीज की फजाओं में रेडियो की आवाज गूंजी और मालूमात, तफरी और तालीम की नई राहें खुली। बाद अज़ां ऑल इंडिया रेडियो बरे सगीर में अबलाग का सबसे मौसर जरिया बनकर उभरा। कौमी नशरियाती इदारों ने आज़ादी हिंद की तारीख में अहम किरदार अदा किया और इसके बाद भी समाजी, तालीमी और सकाफती शोबों में आवाम तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाने का फरीजा अंजाम दिया। आज न सिर्फ बड़े बड़े शहरों बल्कि गांव देहात और दुश्वार गुजार इलाकों में भी रेडियो अपनी नशरियात से सुनने वालों को जोड़े रखता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है। मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन बशमूल FM और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस आज भी लोगों के जज्बात, मसाइल और सकाफती विरसे को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और इसे महफूज कर रहे हैं। खासतौर से कौमी बहरान या कुदरती आफात के मौके पर रेडियो ने हमेशा बरवक्त मालूमात और रहनुमाई की है और ये सिलसिला जारी है। इस दौरान प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने आज दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि कौमी नशरियाती दिन न सिर्फ हमें अपने नशरियाती विरसे की याद दहानी कराता है, बल्कि ये नए चैलेंजेस कबूल करने और तकनीकी तरक्यात को अपनाने की भी तरकीब देता है, ताकि माशरती बहबूद के लिए रेडियो की खिदमात को मौसर बनाया जा सके। This year is truly special for our national airwaves. On the one hand, we are on the verge of celebrating 90 years of the Voice of the Nation, Akashvani, one of the greatest broadcasting institutions in the world. On the other hand, just a year after that, in 2027, we shall celebrate the centenary of the first radio broadcast in India on the 23rd of July 2027. Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education, and healthy entertainment. Since 1936, All India Radio, as it was known then, or Akashvani, has been preserving and propagating India's rich culture and traditions. And not just that, it has been connecting people at large with the journey of scientific progress across the country. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience. Your institution, Akashvani, has tugged at your heartstrings through the sheer magical power of the voice. And that's what radio is all about, reaching out to everyone across our vast and great country. May the relationship between Akashvani and our beloved listeners across India and abroad continue to blossom and bloom, spreading knowledge and joy to everyone. इधर प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल ने दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा है कि रेडियो के जरिए इल्म, समाज और सकाफत की तरवीज को मजीद फरोग मिल रहा है और आज के कंप्यूटर दौर में भी रेडियो खुद को जिंदा रखने में कामयाब हुआ है। यह वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। उस आवाज को जो कि पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, उसके हम 23 जुलाई 2027 को हम 100 साल भी पूरे कर लेंगे। अपनी स्थापना के साथ ही संस्था ने ऐसी यात्रा शुरू की है जिससे भारत की विविधता को आवाज दी, सामाजिक संवाद को गति दी, सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज को मजबूत किया। 1936 से जब इस ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तब आकाशवाणी न सिर्फ एक माध्यम रहा है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विविधता और वैज्ञानिक सोच का एक समाहक भी रहा है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों को साथ लेकर चलने वाली संस्था ने शहर से लेकर गांवों तक रेडियो सेट के माध्यम से सीमाओं के जवानों तक और महानगरों के स्टूडियो से लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं तक, हर दिल तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आप आज भी देश भर के आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को देखें तो पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा पहलू हो, वो चाहे सामाजिक हो,
राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, जिसे कि आकाशवाणी ने न छुआ है। आज के डिजिटल युग में जहाँ की सूचनाओं की बाढ़ है, वहाँ रेडियो की ही एक साफ मानवीय आवाज है जो कि अपना संदेश दूर दूर तक, गांव-गांव तक पहुंचा रही है। क्योंकि जहाँ भी ये आवाज पहुंचती है, चाहे वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है अथवा नहीं, जिसे जुड़ना है वो उससे जुड़ना चाहता है और उसे समझना चाहता है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और वो शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष की में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है, और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया, और पिछले एक दशक की बात करें तो आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नागरिकों के बीच में मन की बात के माध्यम से एक पुल का काम भी किया है। देखा जाए तो ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। कौमी ब्रॉडकास्टिंग डे के सिलसिले में प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का पैगाम। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामीन, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार श्रीनगर में जेर तालीम तलबात और अमले ने शेरबीन को बताया कि न सिर्फ स्कूल बल्कि गिरदोनवा की बस्तियों को जो पानी जल शक्ति महकमे की तरफ से फराहम किया जा रहा है वो अक्सर मटमेला होता है, जिस वजह से अब तलबा ये पानी पीने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात तलबा बीमार भी हो रहे हैं। स्कूल में लगे फिल्ट्रेशन भी बार बार खराब हो रहे हैं, जिनकी मरम्मत अब स्कूल इंतजामिया के लिए एक मसला बन चुका है। तालिबात के मुताबिक उन्हें या तो दरियाए जहलम का रास्त पानी दिया जा रहा है या फिर स्कीम के फिल्ट्रेशन प्लांट में ही कोई खराबी है, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। उधर अमले का भी मानना है कि दरियाए जहलम में पानी मटमेला होने के साथ ही उन्हें भी नासाफ और नाकाबिल इस्तेमाल पानी पीना पड़ रहा है, जबकि आसपास के लोग भी नासाफ पानी की शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने महकमा पीएचई से अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर में इस वक्त दर्जनों हायर सेकेंडरी स्कूल बगैर सरबराह काम कर रहे हैं, जबकि जड़ियों और हेडमास्टर्स की कुर्सियां भी खाली हैं। महकमे से वाबस्ता बाज मुलाजमीन ने शेरबीन को बताया कि 2 माह कबल सीनियर लेक्चरर्स से प्रिंसिपलों की तरक्कियां अमल में लाई गई थी, मगर अभी तक तरक्की पा चुके प्रिंसिपलों की पोस्टिंग अमल में नहीं लाई गई है। ताखीर की वजह से यहाँ तालीमी इदारों का कामकाज मुतासर है और साथ ही तरक्की पा चुके प्रिंसिपल भी मखमसे का शिकार है कि क्या किया जाए। तरक्की पा चुके प्रिंसिपलों ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि उनकी पोस्टिंग फौरी तौर अमल में लाई जाए। रामबन से मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट है कि 21 जुलाई को जिला सेशन जज रामबन दीपक सेठी ने पुलिस स्टेशन गोल के तहत दर्ज कत्ल और अगवा के एक 22 साल पुराने केस में 2 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मुलजमान को दफा 302 रणबीर पेनल कोड के तहत उम्र कैद, जबकि दफा 364 आरपीसी के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई है, जो एक साथ मुकम्मल की जाएगी। अब एक और मौसम। समीन, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज 2800 यात्रियों का एक और काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ और ये काफिला अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक आज सिर्फ 2837 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिला ही जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, जो कि 3 जुलाई से जारी यात्रा का सबसे छोटा ग्रुप तस्वर किया जा रहा है। इधर बूंदाबांदी और बारिश के बीच आज दोनों रूटों पर यात्रा जारी रही। मुकम्मल जानकारी रहीम रिजवान से। वादी में गुज़श्ता रोज से हो रही बारिशों के बावजूद सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बिना खलल जारी है। इस दौरान आज सुबह सवेरे 3:30 बजे से दुमेल कंट्रोल गेट पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें रजिस्ट्रेशन काउंटर पर देखने को मिले, जहां रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल करने के बाद 3481 यात्री गुफा की तरफ निकल पड़े। गुफा जाने वाले यात्रियों में 2345 मर्द, 997 खवातीन, 17 बच्चे, 2 साधु और 120 सिक्योरिटी के एहलकार शामिल थे, जबकि गुज़श्ता रात 10:30 बजे तक 10,148 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके बहिफाजत बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 7,605 मर्द, 2,407 खवातीन, 60 बच्चे, 75 साधु और 1 साध्वी शामिल थी। इस बीच ये रिपोर्ट फाइल करने तक 2,928 यात्री दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे, जिनमें
246 मर्द, 653 खवातीन, 18 बच्चे और 11 साधु शामिल थे। पवित्र गुफा से दर्शन करके वापस बालतल बेस कैंप और नुनवन बेस कैंप पहुंचने वाले यात्रियों का ये सिलसिला देर रात गए तक जारी रहेगा। इधर नुनवन बेस कैंप से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक आज चंदनवारी और आसपास के निजी होटलों में रात भर कायम पजीर 4138 यात्री रजिस्ट्रेशन करके सुबह सवेरे गुफा की तरफ रवाना हुए, जबकि शीशनाग और पंचतनी में रात भर कायम पजीर 5700 यात्रियों को भी आज सवेरे गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई और इन यात्रियों ने स्थापन पर हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता शाम 7 बजे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 3,41,809 श्रद्धालुओं ने गुफा जाकर हाजिरी दी। पूजा पाठ में शिरकत करके मुल्क और वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। यात्रा को अहसन तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए जहां जिला इंतजामिया गांधरबल और अनंतनाग ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, वहीं यात्रियों को बहिफाजत गुफा तक पहुंचाने के लिए आर्मी, BSF, CRPF, SSB, ITB, NDRF, SDRF वॉलंटियर्स और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहलकार चाको चौबंद रखे गए हैं, जो यात्रियों को यात्रा के दौरान हर मुमकिन सहूलियत बहम पहुंचाने में 24 घंटे पेश रहते हैं। वाजा रहे जम्मू भगवती नगर बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से शाम 5 बजे के बाद आने वाले किसी भी यात्री को ट्रांजिट कम मनगाम और ट्रांजिट कम शादीपोरा से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि शाम 5 बजे के बाद यहां पहुंचने वाले यात्रियों को इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है। इस तरह गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी अमरनाथ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है, जिसकी निगरानी जिला और सूबाई इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसरान कर रहे हैं। आपने रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने गगनगीर सोनमर्ग इलाके में एक वसी सतह का मॉक ड्रिल अंजाम दिया। सरकारी जराये के मुताबिक इस मशक का मकसद मुमकिन खतरा से निपटने की तैयारी, फोर्सेज के दरमियान हम आहंगी और यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। PDP का एक इजलास आज पार्टी लीडर अल्ताफ मलिक की सदारत में अचबल रफियाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें यूथ और खवातीन विंग के अहदेदारों ने भी शिरकत की। इजलास में कारकुनान बशमूल खवातीन पर जोर दिया गया कि वो पार्टी के 28 जुलाई के योम तासीस में अपनी शमूलियत यकीनी बनाएं और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करें। सभी गुज़श्ता शाम दक्षिण इलाके में एक JCB के खाई में गिर जाने से 3 अफराद की मौत हुई थी, जिनकी पहचान नजीर अहमद, मोहम्मद इसाक और अब्दुल हमीद के तौर हुई है। आज उनकी तदफीन अमल में लाई गई। इस दिलखराश हादसे पर साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू, गुलाम मोहम्मद सुरूरी, साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भटबलीसी और जिला तरक्याती कौंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने सदमे का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की है। सामिन गांधरबल के रखहरन, गाडूरा, डगपोरा, शेख मोल्ला, मीर मोल्ला और मुनिका देहात के बाशिंदों की शिकायत है कि वहां नाले सिंध से एक शाख खौन पहलीपुरा से गुजरती है और ये कनाल हजारों कनाल जरी जमीन को आबाद करती है। इस शाख के किनारों पर बाज खुदगर्ज अनासर की तरफ से तजावुजात खड़ा किए गए हैं, जिस वजह से ये कनाल किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं दे पा रही है और किसान सिंचाई को लेकर सख्त परेशान है। ये मामला जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के नोट्स में बारहा लाया गया, मगर कनाल की बहाली के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि हजारों कनाल जरी जमीन पर काश मुतासिर है। इलाके के किसानों ने अब सूबाई कमिश्नर कश्मीर से अपील की है कि इस मामले में जरूरी मुदाखलत की जाए और कनाल को फौरी तौर बहाल कराया जाए। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपनी मेजबान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।